The Lord Jesus Christ is holy, He's healthy, He's almighty, He's the King of authority, He's full of power, He's all-seeing God, He's all pure God, He's all compassionate God, He's a gentle God, He's a harmless God. He's all loving, He's all approachable, He's all giving, He's all protecting, He's all firmness, and He's all joyful, He's satisfied. His words are sweet, respectful, comforting words comes out of Him. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sushmita is 10 years old? Good. All right, turn your Bible to 1 Timothy chapter 3. आइए हम इस समय हमारे बाइबल को खोलेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 3 1 Timothy chapter 3, and we are looking at verse number 15 and 16. और वचन 15 और 16 से हम आज अध्ययन करेंगे. Let's actually see in verse 14, 15 and 16. 14 से लेकर हम 16 तक देखेंगे. 14, 15 और 16. To honor the word of God, would you just stand for the last time? आइए हम आखिरी बार और एक बार खड़े होकर परमेश्वर की वचनों को हम आदर करने के लिए हम खड़े उठेंगे इस समय. The Bible says, "These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, receiving up into glory." Shall we call the Lord in prayer? Heavenly Father, we ask your blessing over the message. We pray that thou will please fill us with your Holy Spirit, give us an understanding, give us a receptive heart and an alert mind. O Lord, cover me behind thy cross so that Jesus Christ may be glorified. In Jesus' precious name we pray. Amen. You may be seated. Apostle Paul is writing to the young pastor Timothy as he pastors this Ephesus church. यहाँ पे प्रेरित पौल जो है एक जवान एक पासवान को वो एक खत को लिखता है जैसे वो उस कलीसिया में इफिसस कलीसिया में वो जो पास्टर का काम कर रहा है पासवान का काम को कर रहे हैं. This church was almost like our church. और ये वो जो कलीसिया था वो हमारे कलीसिया जैसे ही थे. It loved God. जो परमेश्वर से प्यार करें. It was passionate about Jesus Christ. परमेश्वर को लेकर बहुत इच्छुक रहे. They were winning souls. उन लोग आत्माओं को जीत रहे थे. Living life for the glory and honor of God. परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए जीवन को जी रहे थे. They were good givers. उन लोग अच्छे देने वाले लोग थे. They were compassionate to one another. उन लोग एक प्रति के ऊपर उन लोग स्नेहमय थे. They were loving and kind. और उन लोग प्यारे और दयालु थे. They were true to the word of God. और उन लोग परमेश्वर की वचनों को लेकर उन लोग सच में रह रहे थे. And Apostle Paul is the one who started this church. और प्रेरित पौल जो है इस कलीसिया के स्थापना किए थे. When he planted this church, he taught them and he won a young man. His name was Timothy. और वो एक कलीसिया को वो सिखा रहे थे परमेश्वर की वचनों को बता रहे थे और एक जवान जो पासवान है तीमुथियुस उसको वो सिखा रहे थे. So now Apostle Paul is on a far place. और अभी जो प्रेरित पौल है वो अभी बहुत दूर जगहों में है. But before going, he appointed and ordained Timothy to be the pastor in this church. लेकिन वो बाहर जाने से पहले एक व्यक्ति को उसने नियुक्त किया था कि उस कलीसिया का वो पासवान बन सके. He trained him how to be a good pastor. और उन्हें वो सिखाने लगा कि कैसे एक अच्छा पासवान बन सके. He was a young pastor. और वो एक जवान पासवान था. He was a very young man. बहुत जवान व्यक्ति था. He lacked experience. और उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस की कमी थी. And but he was a good pastor. लेकिन वो एक अच्छा पासवान था. So Paul is writing this to teach Timothy as well as to instruct the church here. तो यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखता है खत को और
उसके अलावा कलीसिया को शिक्षाओं को देने के लिए। In verse number 15, there are so many truths that you and I can learn today और वचन 15 में से बहुत सी सच्चाइयां हैं जो हम सीख सकते हैं and apply these beautiful truths in our life. और इस खूबसूरत सच्चाई को हम हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। And when you look at verse number 15, जब वचन 15 में आप जब देखेंगे, we are understanding that Paul is writing because he is going to come shortly to Timothy. और हम यहाँ पर देखते हैं वो खत को इसीलिए लिखता है क्योंकि वो आने में देरी कर रहे हैं। Timothy, I'm going to come to you. और तीमुथियुस जो है मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। Very soon I'm going to come. और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। But if my plan changes, लेकिन अगर मेरी योजना में बदलाव आ जाती है, and if I'm late, अगर मैं देरी करता हूँ, I want you to know that you need to teach people how to behave. मैं चाहता था कि तुम ये जाने कि तुम अपने कलीसिया के लोगों को सिखाए कि कैसे व्यवहार करने हैं। A behavior in the house of God is very important. परमेश्वर का भवन में कैसा बर्ताव करना है वो बहुत ही जरूरी है। When there is no proper behavior in the house of God, it ruins the spirit in the worship service. जब कलीसिया के भवन, परमेश्वर के भवन में जब लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते, हमारा जो आराधना है परमेश्वर के प्रति वो खराब हो जाते हैं। And so we ought to be mindful of each and every minute things. और ये सब बातों को लेकर हमें जो है मन में रखना चाहिए इन सब बातों को। Because the house of God is the house of God. क्योंकि परमेश्वर का भवन परमेश्वर का भवन है। It belongs to Jesus. और वो यीशु मसीह का है। It's not just a building. और ये केवल एक घर ही नहीं है। It's actually the gathering of the people. लेकिन ये लोगों के इकट्ठे होने का एक स्थान है। And so when people gather together जब लोग इकट्ठे होते हैं of the same faith, और एक ही विश्वास को लेकर, and when they gather together because they are believers of the Lord Jesus Christ, और उन लोग यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं इसलिए उन लोग इकट्ठे होते हैं, that's what is called as the church. और उसी को हमें कलीसिया कहते हैं। And Paul says, I want you to know how to behave. और पौलुस कहता है ताकि मैं चाहता था कि तुम ये जाने कि कलीसिया में कैसे व्यवहार Look at करना verse है। number 15. वचन 15 में देखें, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave. कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और जो सत्य का खंबा है। No, just read what I'm saying. So Paul is saying to Timothy, I want you to know, if I tarry long, I want you to know how to behave. पौलुस कहता है कि अगर मेरे आने में देरी हो जाते हैं, मैं चाहता था कि तुम ये जाने कि परमेश्वर के भवन में कैसे व्यवहार करने हैं। How to behave. कैसे व्यवहार करने हैं। Secondly, where दूसरी बात कहाँ पे। to behave in the house of God. परमेश्वर के भवन में कैसे बर्ताव करने हैं। Third, why? तीसरा क्यों। Because it is the house of God. क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। Fourth, why it is so important. चौथा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। Because it is the pillar and ground of truth. क्योंकि ये सत्य का खंबा और नींव है। Do we look at our church in that manner? क्या हम उस रीति में हम हमारे कलीसियाओं को हम देखते हैं। Do we look at our church as a church where God's presence is there? क्या हम हमारे कलीसिया को इस नजर से देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर का हुजूरी वहाँ पर मौजूद होते हैं। I'm sure if God was physically present here, we would behave it differently. अगर परमेश्वर शारीरिक तौर से यहाँ पे मौजूद होते तो शायद हम हमारे बर्ताव बदल जाते। Am I right? क्या मैं सही हूँ। If Jesus was physically present, we would behave in a different way. अगर यीशु शारीरिक तौर से यहाँ पर मौजूद होते तो हम अलग तरीके से बर्ताव करते। But he is much more real and more powerful than that when he is spiritually present in our midst. लेकिन उससे भी अधिक वो सामर्थ्यशाली और महत्वपूर्ण है जब वो आत्मा में हमारे बीच में मौजूद है। Unfortunately, we take that invisible thing to be not so important. लेकिन दुखी की बात यह है कि जो अदृश्य चीजें हैं उसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं देते We हैं। take it for granted. हम ऐसे ही साधारण में ले लेते हैं। But if something physical is there, we take it more seriously. लेकिन जो शारीरिक जो दृश्यमय होते हैं उसको हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं, गंभीर में लेते हैं। We need to change our mentality. हमें हमारी मनसा को बदलना चाहिए। We need to understand that God's presence in spirit is more powerful than anything else. तो हमें ये समझने की आवश्यकता है परमेश्वर का जो हुजूर है हमारे बीच में जितना भी चीजें हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर का But उपस्थिति if I tarry long, कि यदि मेरे आने में देरी हो that thou mayest know how to behave thyself in the house of तो God. तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में कैसे हमें बर्ताव करने व्यवहार करने हैं। First and foremost, we must understand we need to behave in the house of God. सबसे पहली बात हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के भवन में बर्ताव करने हैं। In our home, we teach
our children how to behave. हमारे घर में हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हमें बर्ताव करना In चाहिए। school, the teachers teaches their students how to behave. पाठशाला में भी हम देखते हैं कि शिक्षक जो होते हैं सारे छात्रों को सिखाते हैं कि कैसे बर्ताव करने हैं। In the working place, the boss teaches the staff how to behave. जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के जो मालिक है अपने कर्मचारियों को सिखाते हैं कि कैसे बर्ताव करने हैं। And so the children will behave well in school. तो बच्चे लोग जो है स्कूलों में जो है अच्छे बर्ताव करेंगे। In the job, working place, the staff members will behave as the boss expects them. और काम के जगहों में जो कर्मचारियां होते हैं और जो उन लोग के जो मुख्य व्यक्ति है उसके अनुसार उन लोग काम करेंगे। We must understand this. हमें ये बातों को समझना है। We are God's children. हम परमेश्वर के संतान हैं, But at the same time, लेकिन उसी वक्त भी we are also God's servants. हम परमेश्वर के सेवक भी हैं। We take the freedom to behave the way we want as God's children. हम उस स्वतंत्र को हम ऐसे गलत तरीके से लेते हैं जहां पे हम परमेश्वर के संतान हैं। We take the freedom of behaving in the house of God as God's children. हम जो स्वतंत्र है उसको हम परमेश्वर के संतान जैसे हम होते हैं, हम परमेश्वर के भवन में हम उसका बर्ताव करते हैं। But we forget that we are God's servants also. लेकिन हम ये बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक भी हैं। Do you know the difference between the child of God and the servant of God? क्या आप इस दोनों के अंतर में बीच के अंतर को समझते हैं, परमेश्वर का संतान और परमेश्वर का सेवक? Do you understand the difference? क्या आप दोनों में अंतर समझ पाते हैं? No, I'm not trying to hint anybody. I'm just giving an example here. मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं आपको एक उदाहरण को दे रहा हूँ। And please try. This is the only example I can give. और ये एक ही उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। If you are going to work, अगर आप काम के लिए जाते हैं, you have to be in time. आपको समय में रहना उचित है। At home, you can come whatever time you want. घर में चाहे आप जो भी समय पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, You're the child. आप वहाँ के हैं। But if you're going to work, लेकिन आप अगर काम के लिए जाते हैं, can you behave the way as a child? क्या आप एक बच्चे के समान बर्ताव कर सकते हैं? Honestly, can you? क्या आप कर सकते हैं ऐसा? Everybody? No. We ought to be in time. हमें समय पे रहना उचित है। Now, that's the best example I can give you, the difference between a child and a servant. तो वही मैं आपको एक बेहतर उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे बच्चा और एक जो सेवक है। And so there is a difference between a child of God and a servant of तो God. परमेश्वर का संतान और परमेश्वर का सेवक में वही अंतर है। We will always be God's children. हम हमेशा ही जो है परमेश्वर का संतान बने रहेंगे। But then God now wants us to become dear children. लेकिन अभी परमेश्वर चाहता था कि हम उनके प्रिय संतान बन सके। Do you know that not all children of God are dear children of God? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के सारे जो संतान है परमेश्वर के हर कोई परमेश्वर के प्रिय संतान नहीं है? God wants us to become dear children of God. परमेश्वर चाहता था कि हम उनके प्रिय संतान बन सके। In fact, when you read the book of Romans, we understand that we have voluntarily now become a slave of Jesus Christ. अगर हम देखते हैं रोमियो के पुस्तक में, वहां पर हम परमेश्वर की जो हम गुलाम बन चुके हैं। Once upon a time, we were slave to the devil, एक समय ऐसा था जहां पे हम शैतान के गुलाम थे, and now we are slave to the Lord Jesus लेकिन Christ. अभी हम यीशु मसीह के गुलाम हो चुके हैं। We are God's children. हम परमेश्वर के संतान हैं, We are God's servants. हम परमेश्वर के सेवक हैं। We come to God's house हम प्रभु के भवन में आते हैं and we try to do everything in order and in decency. और सब कुछ हम सही रीति से करने के लिए हम कोशिश करते Paul हैं। is teaching to Timothy because this church is really wonderful, but there were some issues in the church. पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को सिखाता है, कलीसिया बहुत ही बेहतरीन था लेकिन कुछ छोटे छोटे दिक्कतें थे वहाँ Some पे। behaviors were not कुछ right. जो बर्ताव थे वो सही नहीं थे। There was a woman who wanted to be a pastor. एक ऐसा स्त्री थी जो पासवान बनना चाहती There were थी। some women who wanted to teach, and Paul says, I don't give authority for a woman to teach. ऐसे कुछ स्त्रियां थे वहाँ पे जो प्रचार करना चाहते थे और पौलुस कहता है मैं तुम लोग को अधिकार नहीं देता हूँ। Some were doing too much of fashion show in the church. और बहुत से लोग जो है फैशन शो उन लोग कर रहे थे कलीसियाओं And में। Paul said, no, they teach them to be modest. पौलुस कहता है नहीं उन लोग को सही बनने के लिए उन लोग सिखाओ। Some people thought, just go, church is just like another place of entertainment. We can behave the way we want. और कलीसिया और एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मनोरंजन करते हैं, हम जैसे चाहते हैं वैसे हम बर्ताव कर सकते And हैं। Paul says, no, that should be discipline in the house of God. पौलुस कहता है परमेश्वर के भवन में सही रीति से होना चाहिए सब कुछ। Because the presence of God
God is there, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे मौजूद है, and we need to understand and reverence the presence of God. और हमें इसको समझकर हमें परमेश्वर को पहला और मुख्य स्थान देना है. We have to behave in the house of God reverentially, respectfully, responsibly, and redeemingly. और हमें परमेश्वर की भवन में जो है हमें पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ और हमारे पूरे हृदय के साथ, ताकि हम परमेश्वर को पहला प्रमुख Now, स्थान को दे सकें. Treat God with the best more than you would do to the president of a nation. अगर हम देखते हैं हमारे परमेश्वर की हुजूरी के अलावा अगर आप हमारे देश के जो प्रधान है उसको आप और ज्यादा सम्मान करेंगे. Treat God with your best more than you would treat the president of your nation. जो आपके जो देश के जो प्रधान व्यक्ति है उससे भी अधिक आप परमेश्वर को जो है आप सम्मान को दें. I can guarantee you one thing for sure. एक मैं आपको निश्चित तौर से मैं बता सकता That हूं if I say to next Sunday, the president of our country will be attending that service with us here. अगर मैं आपको कहूं कि अगले रविवार को जो है हमारे साथ हमारे बीच में हमारा जो प्रेसिडेंट है भारत का वो यहाँ पे आने वाले हैं, Everyone's behavior will be different. आप में से प्रत्येक जनों का जो स्वभाव है वो बदल जाएंगे. Everyone's attendance will be different. सब लोगों का यहाँ पे आना जो है वो बदल जाएंगे. Many of us are changing of our dresses will be different. Our हमारे- clothes will be different. हमारा जो पहनावा है वो भी सब बदल जाएंगे. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes or no? That's the truth. और वही सच बात है. But we need to honor God more than the president of the nation. और हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उससे भी अधिक हमें परमेश्वर को आदर देना है. Treat God with the best more than you would to do the president of a nation. जो आप देश के प्रेसिडेंट से आप जैसे बर्ताव करने थे उससे भी बेहतर और अधिक आप परमेश्वर को आदर दें. Respect God and God's people and visitors. और जो लोग नए नए लोग आते हैं और परमेश्वर के लोग जो हैं उनका भी आदर करें और परमेश्वर का आदर करें. So if we respect God, अगर आप प्रभु का आदर करेंगे, how we will respect God if we see him in person? अगर हम उन्हें नहीं देखते तो हम उनका कैसे आदर करें. Respond to the service, messages and participate in it. और जो सर्विस होते हैं, जो उपदेश होते हैं उनमें आप हिस्सा लें. We have to respond to the messages. और जो संदेश आते हैं उसके लिए हमें कुछ बोलना भी होता है और रिस्पॉन्स भी देना होता है. We need to participate in the services. और उस ऐसे सभाओं में हमें जो है शामिल भी होना है. This is how we behave in the house of God. और वैसा ही जो हम कलीसिया में बर्ताव करते हैं. What if I send you a message and you don't respond to me? अगर मैं आपको कुछ संदेश भेजूं, अगर आप उसका कोई रिस्पॉन्ड ना दे तो कैसा लगेगा? And that's why we need to always respond to the messages of God. इसलिए हमें परमेश्वर की जो संदेश है उसका हमें रिस्पॉन्ड भी करना होता है. Which means receive it, apply it and act on it. इसका मतलब आपको ग्रहण करना है, उसको लागू करना है और उसके द्वारा चलना है. And when needed, shout an amen to it. जब जरूरत होंगे तो उस समय आप आमीन कह के चिल्ला सकते हैं. Amen? आमीन. Respect God and God's people and visitors. Respond to the service, messages and participate in the service. परमेश्वर का आदर करें, लोगों का आदर करें और विजिटर्स लोगों का आदर करें. जो संदेश प्रचार होते हैं उसमें हमें रिस्पॉन्स भी करना होता है. Each and every one should make sure that you are actually meeting and encouraging one another. और आपको ये मन में रखना है कि आप जो है प्रत्येक जनों में जो है आप एक दूसरे को हमेशा उत्साह करें. Those are another way of behaving in the house of God. और वो और एक तरीका है जो हम परमेश्वर के भवन में हम बर्ताव करते हैं. Redeem the time with your cooperation. और आपकी जो सही दृष्टिताओं से जो है आप समय को निकालें. So when we come in the house of God, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, Paul tells us this. पौलुस हमें ये कहता है, Basically, the Holy Spirit. और हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें ये कहता है. The Holy Spirit says, I want you to behave in the house of God. पवित्र आत्मा ये कहता है कि मैं चाहूँगा कि तुम कलीसिया में सही बर्ताव करें. I want you to give me the best reverential respect that you would otherwise give it to the president of the nation. मैं चाहूँगा कि तुम सबसे उत्तम और बेहतरीन जो आदर है उसको तुम मुझे दो. I know some of you at this moment, I don't care about it. Some people may say that. बहुत से लोग कह सकते हैं मुझे कोई परवाह नहीं.
But that's not the truth. लेकिन वो सच बात नहीं है। The truth is, if the president is here, you will be different. सच बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर आ जाते हैं, आपका जो बर्ताव है वो बदल जाएंगे। And so we all need to understand, okay, the Spirit of God is telling me, I need to participate in the service. I need to respond to the Word of God. I need to respect God's people. And I need to redeem my time. तो हमें ये समझना है कि नहीं, परमेश्वर का जो हुजूर है, मौजूदगी यहाँ पर है, तो मुझे परमेश्वर का आदर करना है, संदेश को सुनना है और उसको मुझे रिस्पांस भी देना है। Because there is power in the house of God. क्योंकि परमेश्वर के भवन में वो सामर्थ्य है। And the power is God Himself. और वो जो सामर्थ्य है परमेश्वर खुद ही है। We have to understand God is in our midst. हमें ये समझने की आवश्यकता है परमेश्वर हमारे बीच में है। The Lord Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I. यीशु कहता है जहाँ पे एक या दो मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। He says, Lo, I am with you always. और वो कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ सदा काल के लिए हूँ। The Lord is in our midst today. और यीशु आज हमारे बीच में है। He is in our midst more real than you can ever imagine. और जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी अधिक परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। And so because of that, we need to behave in the house of God. और उसी के लिए जो हमें परमेश्वर के भवन में हमें सही से बर्ताव करना है। Secondly, we need to bind yourself in the house of God. दूसरी बात, आपको जो है परमेश्वर के भवन में आपको बांध के रखना है। First is you need to behave in the house of God. सबसे पहले बात आपको परमेश्वर के भवन में व्यवहार करने हैं। Second is you need to bind yourself in the house of और God. दूसरी बात आपको परमेश्वर के भवन में बंधन में बने रहना है। You know what bind yourself means? क्या जानते हैं खुद को बांध के रखना मतलब क्या होता है? Your life should be saturated by your service in the house of God. आपका जो जीवन है परमेश्वर की सेवकाई में जो है हुजूरी में बने रहना है। Let me speak in this manner. You become made in the house of God. आप परमेश्वर की कलीसिया में जो है काम करने वाला बन जाते हैं। You come to work in the house of God. आप प्रभु की कलीसिया में भवन में काम करने के लिए आते हैं। We work by praising God. परमेश्वर की स्तुति के द्वारा हम काम करते हैं। We work by worshiping God. प्रभु की आराधना के द्वारा हम काम करते हैं। We work by esteeming others better than us. और हम दूसरों को खुद से बेहतर जानते हुए हम प्रभु की आराधना करते हैं। We work by considering others better than us. और हम खुद से भी अधिक दूसरों को बेहतर समझकर हम काम करते हैं। We need to bind ourselves in the house of तो God. हमें खुद को परमेश्वर के भवन में बांध के रखना चाहिए। Which means there is nothing else that should be more entertaining to you or more important to you on the Sunday morning. इसका मतलब यह है कि रविवार के दिन में कलीसिया से ज्यादा तुम्हारे लिए कोई भी महत्वपूर्ण, कोई भी मजेदार वाला चीज नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। You know, we sing that song, bind us together, Lord, bind us together. हम ऐसा गाना गाते हैं कि हमें आप बांधे, आप हमें एक साथ बांधे With cords that cannot be broken. और ऐसा जंजीर से जो कभी टूट नहीं सकती। The word of God is that cord. और परमेश्वर का वचन वही है। And we need to let the word of God bind us to the house of और God. हमें परमेश्वर के वचन की अनुमति देना ताकि वो हमें परमेश्वर के भवन में बांध सके। Paul says, hey, everybody should be binded in the house of God. पौलुस कहता है कि सभी लोगों को जो कलीसिया में बंधन में बने Why रहना should है। I be binded? क्यों मुझे बंधन में बने रहना है? Because it is the strongest pillar of truth. क्योंकि वो सत्य का खंबा है। I studied something about the elephant philosophy, और एक a psychology एक साइकोलॉजी about the elephant. और एक हाथी के बारे में। You take the elephant, आप एक हाथी को लें you chain it on the leg, और आप पाँव में जंजीर को डालें, लगाएं and you tie it to the tree. और एक खंबा में आप उसको बांध दें। And the elephant will be moving around और जो हाथी है चारों ओर घूमते रहेंगे। because the elephant is binded right now by chains to on the leg to the tree. क्योंकि हाथी को जो है पाँव में बांधा गया है उस खंबे के साथ। After some time, कुछ समय के बाद the owner of that elephant removes that chain from the tree. और जो हाथी का जो मालिक है हाथी को जो है उस जंजीर से कुछ देर के लिए आजाद कर देते हैं। But he still keeps that chain binded on his leg. लेकिन जो वो जंजीर है फिर भी पाँव में बने रखता है। But from the tree it is untied. लेकिन उस खंबा से जो है उस जंजीर को बाहर निकाल देते But the हैं। elephant always thinks in his mind, लेकिन हाथी को हमेशा ये मन में लगता है I'm still binded. कि मुझे अभी भी बांधा गया है।
I'm still binded to the tree. मुझे अभी भी उस खंभा में बांधा गया है। So the elephant tries to be around where it was always going around when it was binded. तो जहाँ पे हाथी को पहले बांधा जाता था वहां पे जो चक्कर लगाते थे वहां पर ही वो हमेशा ही रहता है। Now God doesn't want us to think in that manner, or God is not going to untie you. परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे कि आपको वो नहीं बांधेंगे, और हमें ऐसा भी नहीं सोचना है। And we should never wish that we be untied from God. और हमें ऐसा ख्वाहिश भी नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर हमें ना बांधे। We should be binded in the house of God because God's presence is in his house. हमें परमेश्वर की हुजूरी में बंधन में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। Your heart should be buried in the house of God. आपका जो हृदय है परमेश्वर की कलीसिया में दफन होना चाहिए, That's where we eat. क्योंकि यहाँ पर ही हम खाते हैं, That's where we have family time. वहां पर ही जो हम परिवार का हम समय को गुजारते हैं, That's where our life should be surrounded. और वहां पर ही हमारा जीवन जो है व्यतीत होना चाहिए। Paul said, now you are set free from the world. पौलुस कहता है अभी तुम संसार से तुम आजाद हो चुके हो। Now you are binded to the house of God, not to the house of the world. संसार के घरों में नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन में तुम्हें बांधा गया है। And you should be willing to be binded to the house of God because it is the pillar of truth. और तुम्हें इच्छा होना चाहिए कि तुम परमेश्वर के भवन में बंधे रहो, क्योंकि ये सत्य का खंभा है। There is no other truth. और कोई सच नहीं है। The truth is only preached in the house of God. और सत्य जो है केवल परमेश्वर के भवन में प्रचार होता है। Because the word of God is preached in the church. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है प्रभु के भवन में ही प्रचार होता है। It says because it is the strongest pillar. क्योंकि वो सबसे मजबूत सत्य का खंभा है। Not only a strongest pillar of truth, it is also the firmest ground you stand upon. वो केवल सत्य का ही खंभा नहीं, लेकिन ऐसा मजबूत जमीन पर आप खड़े होते हैं। Look at that verse in verse 15. वचन 15 में उस वचन को देखें। But if I tarry long, यदि मेरे आने में देर हो, that thou mayest know how to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में कैसे जीवित परमेश्वर की कलीसिया में और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा व्यवहार करना चाहिए। So what is the house of God? परमेश्वर का भवन क्या है? The church. कलीसिया। Everybody say church. Now in the church, what is there? What is church? The pillar and ground of truth. कलीसिया मतलब यानी कि वहां पर सत्य का खंभा है और नींव है। On the pillar, to the pillar you are tied and binded. और उस खंबे के ऊपर, खंबे जो है आपको वहां पे बंधा गया है। On the ground you stand firm. और उस जमीन पर जो है आप पूरे मजबूती से खड़े होते हैं। And so we ought to, no, it's not about any false church. We are talking about the Bible church. हम बाइबल के कलीसिया के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ We पे। are talking about our church. हम हमारे कलीसिया के बारे में बात कर We रहे are हैं। talking about a Bible believing Baptist church. बाइबल विश्वासी बैप्टिस्ट चर्च के बारे में हम We are बात कर रहे हैं। talking about any Bible churches. हम बाकी बाइबल कलीसियाओं के बारे में बात नहीं We कर are रहे हैं। talking about a Bible believing Baptist church हम बाइबल विश्वासी जो बैप्टिस्ट कलीसिया है उसके बारे में बात कर रहे that हैं, stands upon the word of God, जो प्रभु के वचन में बने रहता है, that honors the word of जो प्रभु God, का वचन का आदर करता that है, is very close to the New Testament church. जो नए नियम के कलीसियाओं के बहुत करीब है। We need to be binded to that pillar and stand firm on that ground. और उस खंबे में हमें बहुत ही मजबूत तरीके से बने रहना है और उस जमीन पर हमें खड़े रहना है हमेशा। Now, this is what happens. You see, when you make some wrong, it becomes an illustration in my message. जब कुछ गलतियां करते हैं तो मेरे संदेश में वो एक उदाहरण के जैसा बन जाते हैं। That's why I said behave well, otherwise you'll end up in my sermon. इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम अच्छे से व्यवहार करो, तो मेरे sermon में तुम जो है समाप्त हो जाओगे। That's the best example I could give, but I'm not going to give because everybody knows I'm going to talk about you. So, see, church is a family. कलीसिया एक परिवार है। We are all a family. हम सब परिवार हैं। We don't give up on each other. हम खुद के ऊपर हम त्यागते नहीं। Amen? आमीन। Shiny, if you get angry with me, शायद अगर तुम मेरे ऊपर गुस्सा करते हो, will you take your anger on your job? क्या तुम अपने गुस्सा को काम पे डालोगे? Will you take anger in your school? क्या तुम अपने गुस्सा को स्कूल में दिखाओगे? Why do you take anger on the church? तो तुम I'm क्यों just giving an example.
तो तुम अपने गुस्सा को क्यों कलीसिया के ऊपर डालते हो? Why would your problem is me, right? समस्या जो है मैं हूँ, Why church? कलीसिया के ऊपर क्यों? Will you take the anger on the work? क्या तुम अपने गुस्सा को काम में डालोगे? Will you take anger on the school? क्या तुम अपने गुस्सा को स्कूल में डालोगे? Why church? लेकिन कलीसिया के ऊपर क्यों? The devil is playing with our mind. शैतान हमारे मन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। You have a problem with me, you deal with me. तुम्हारा समस्या मेरे साथ है तो मेरे साथ तुम बात करो, Not to the church. कलीसिया में नहीं, Because you will not do that with the job. क्योंकि तुम अपने काम के जगह में नहीं करोगे ऐसा, You will not do that in the school. तुम स्कूल में भी ऐसा नहीं करोगे। You have a problem with me. तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मेरे साथ है। You understanding what I'm trying to say? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? So we have to learn to behave in the house of God. तो हमें इसलिए सीखने की आवश्यकता है परमेश्वर के भवन में कैसा व्यवहार करना है, Because the house of God is the ground and the pillar of truth. क्योंकि परमेश्वर का जो भवन है वो सत्य का खंभा है और नींव है। Because it is the only channel of truth. क्योंकि वो एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई का चैनल है। The Lord gave us the truth. परमेश्वर हमें सच्चाई को देता है Jesus is the truth. और यीशु मसीह सत्य है And his house is the truth. और उनका जो भवन है वो सत्य है And he lives in the house. और वो भवन में रहता है He brings that truth in the house. और वो सच्चाई को कलीसिया में ले आता है And we receive that truth. और उस सच्चाई को हम ग्रहण करते हैं And you and I should be binded in that truth. और उस सच्चाई में हमें खुद को या फिर हमें बंधन में बंधे रहना है We need to learn to behave in the house of God. और हमें प्रभु के भवन में बर्ताव करने के लिए सीखना है And be binded in the house of और God. प्रभु के भवन में बंधे रहना है। We should not take our anger in the house of God. हमें हमारे क्रोध को कलीसिया में नहीं डालना है। Have you seen some people? I'm not going to church anymore. आपने देखा रहेगा बहुत से लोगों को, मैं और कलीसिया नहीं जाऊंगा। Why? क्यों? Because that brother is too bad to me. क्योंकि वो भाई जो मेरे प्रति बहुत गुस्सा करता है। Did you have a problem last week in working place? क्या आपको काम के जगह में दिक्कतें आ रही थी बहुत? Did you leave your job? क्या आपने काम को छोड़ दिए? No. नहीं, Money. क्योंकि पैसा का वहां पे काम है। But why church? लेकिन कलीसिया में क्यों ऐसा? Learn to behave in the house of God. आपको प्रभु के भवन में सही बर्ताव करना सीखना है। Everybody okay? सब लोग सही हैं? See, I'm trying to teach you. मैं आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, Because otherwise it will not be taught. नहीं तो ये सिखाया नहीं जाएगा। Your principal will not teach that. आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको नहीं सिखाएंगे, Your boss will not teach आपके जो that. मालिक है वो आपको नहीं सिखाएंगे, Your pastor will teach लेकिन that. पासवान जो है आपको सिखाएंगे, Because it's the ground and pillar of truth. क्योंकि वो सत्य का खंभा और नींव है। We need to love our church. हमें कलीसिया को प्यार करने वाला होना चाहिए, Because God is the head. क्योंकि परमेश्वर सिर है, It is God's house. ये परमेश्वर का भवन है। And so we need to be binded. तो इसलिए हमें बंधे रहना है, No matter what. चाहे जो कुछ भी हो। Just because of one person, एक व्यक्ति की वजह से I'm not going to allow the devil to hurt me. मैं शैतान को अनुमति नहीं दूंगा मुझे ठेस पहुंचाने के लिए। Because what happens now, Eloise is getting close to her time, अभी एलोई जो है अपने समय के बहुत करीब हैं, right? है कि नहीं? So she will have little pain here. तो अभी हल्का सा दर्द भी होगा, But it is paining whole body, लेकिन पूरा शरीर में दर्द है, right? Because when one member क्योंकि जब एक is in सदस्य pain, जब एक दर्द में होता है the whole body hurts. तो पूरा बॉडी को ठेस पहुंच जाती है। When the eyes hurts, जब आंख में दर्द होने लगता है the whole body तो hurts. पूरा शरीर में दर्द होता है। You know, have you ever walked and your toe hit the door? क्या आपने कभी जब चल रहे थे तो आपके जो पाँव के जो, Did it hurt any time? क्या कभी भी ऐसा आपको हुआ है? You walked and the toe, ow! अचानक से पाँव के जो उंगलियां सब लग जाते हैं And then you do that. और आप उछलने लग जाते हैं, And it hurts. दर्द होता है। That one toe hurt you, एक ही जो टो है वो दर्द हुआ आपको, but now the whole body is jumping. लेकिन पूरा शरीर आपका उछल रहा है। Because the whole body suffers when one member suffers. जब एक सदस्य जब ठेस पहुंचे तो पूरा शरीर ठेस पहुंच जाती है। Which means when you hurt, I hurt. क्योंकि जब आपको ठेस लगती है तो मुझे लगता है, Because it's a body. क्योंकि ये एक शरीर है। And we don't rejoice in your pain. हम आपके दर्द में हम खुशियां नहीं मनाते हैं, We hurt in your pain. हम आपके दुखों में हमें दर्द होता है। When you rejoice, जब आप आनंद मनाते हैं we rejoice with you.
हम आपके साथ आनंद मनाते हैं, because we are binded together क्योंकि as हम one body. एक साथ बंधन में, हम एक शरीर में, देह में हैं। And so we need to behave in the house of God, तो हमें प्रभु के भवन में बर्ताव करने हैं, व्यवहार करने हैं। and we need to bind ourselves in the house of हमें God, प्रभु के भवन में हमें खुद को बांध के रखना है, because it is the strongest pillar of the truth. क्योंकि वो सत्य का सबसे मजबूत एक खंबा है। Now on the street you might find somebody preaching, शायद रास्ते में आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रचार कर रहा हो, but you'll only get the gospel. लेकिन आपको केवल सुसमाचार मिलेंगे। You may find some house group शायद आपको ऐसे हाउस ग्रुप मिलेंगे where वहाँ पे, people have house group prayer meetings. जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। There you'll get lot of gossips. वहाँ पे आपको बहुत से चुगलियाँ मिलेंगे। It is the church that is the ground and pillar of truth. लेकिन एक ऐसा कलीसिया है जहाँ पे आपको सत्य का खंबा और नींव मिलेंगे। There are many house groups today going on. आज बहुत से ऐसे हाउस ग्रुप आपको मिलेंगे। I'm not against it, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, as long as they preach and glorify God alone. जब तक लोग प्रचार करते हैं और प्रभु की महिमा करते But हैं। what happens in the house groups today? लेकिन आज हाउस ग्रुप में क्या होते हैं? A little time of prayer कुछ समय का प्रार्थना, and then much of the gossips. और ज्यादातर हम लोग बात करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। But the church is the ground and pillar of truth. लेकिन कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है। And so you should bind yourself to the strongest pillar of truth. तो आपको सत्य के सबसे मजबूत खंबा में आपको बांध के रखना है। And it is and you need to bind yourself in the house of God because it is the firmest ground to stand upon. और आपको परमेश्वर के भवन में आपको बांधे रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर का सबसे मजबूत एक जमीन है, And because it is the only channel of truth. क्योंकि ये एक ऐसा एक माध्यम है, सत्य का एक माध्यम। So Paul says, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave पौलुस thyself. कहता है, अगर मैं आने में देरी हो तो तुम जानो कि तुम्हें परमेश्वर के भवन में कैसा So व्यवहार Paul करना says, है। hey, you know what? I know I am the main pastor, पौलुस कहता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं ही मुख्य पासवान हूँ, and I know you have more respect for me. मुझे मालूम है कि मेरे प्रति तुम्हारा आदर है। But Timothy, I also want you to teach the people to behave well. लेकिन तिमोथी, मैं चाहता था कि तुम अपने लोगों को सही से व्यवहार करने के लिए And the सिखाओ। church, and he writes to the church and says, you know what? Learn to behave well in the church until I come. और कलीसिया से कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम जानो कि कैसे तुम्हें बर्ताव करना है। Respect one another. एक दूसरे के प्रति सम्मान करो, Be in time. समय पे तुम रहो, Dress up for the Lord. प्रभु के लिए तुम अच्छा पहनो, Give unto the Lord. और प्रभु के लिए तुम दो, And serve one another. और एक दूसरे का सेवा करो। I believe when Paul went away मैं विश्वास करता हूँ जब पौलुस जा चुका होता for है the mission work, और मिशन के कामों के लिए, I believe the attendance also went away. मैं विश्वास करता हूँ शायद उन लोगों का जो लोगों का आना जो है वो भी कम हो गया, And I believe the offering also went down. और मुझे लगता है कि जो ऑफरिंग था वो भी कम होने लग And गया, I believe the behaviors also went और मैं down. विश्वास करता हूँ शायद उन लोगों का जो व्यवहार वो भी खराब होने लग गए। So Paul is writing, no, I'm not the Holy Spirit. पौलुस कहते नहीं, मैं पवित्र आत्मा नहीं हूँ, God is the head of the church. परमेश्वर कलीसिया का सिर है। And Paul says, I want you to attend to the word of God. पौलुस कहता था कि मैं चाहूंगा कि तुम वहां पे तुम बने रहो, I want you परमेश्वर to के be वचन में, binded and be active in the house of और God. तुम बंधे रहो और परमेश्वर के कार्यों में तुम लगे रहो, I want you to give more unto the work of और God. मैं चाहता था कि तुम परमेश्वर के कार्य के लिए और भी ज्यादा दो। So behave well and be binded in the house of तो God. सही से व्यवहार करो और परमेश्वर के भवन में तुम बांधे रहो। Finally, in verse number 16, अंतिम में वचन 16 में, build your soul in the house of God. आपका प्राण को परमेश्वर के भवन में आप बांधे रखो, Build your soul in the house of God. कि प्राण को आप परमेश्वर के भवन में बांधे रखो। Look at that verse. उस वचन को आप देखें। Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखा दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा के ऊपर उठाया गया। In that one verse, there is a gospel presentation. At the same time, it is the presentation of the ascension of Christ. उस एक वचन में एक सुसमाचार भी दिखाया जाता है और परमेश्वर का जो महिमा में जो ऊपर उठना वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। A lot of preachers don't preach this in the gospel today. और आज बहुत सारे प्रचारक लोग गॉस्पेल प्रचार करते वक्त इस वचनों का उन लोग प्रचार नहीं करते हैं। It scares me to know in many churches, the churches are filled with people,
but not with converts. और मुझे डर लगता है बहुत से लोग जो कलीसिया में लोगों से भरा हुआ है लेकिन लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं। You listen to any preachers preaching the gospel, majority of them today, आप कोई भी ऐसे प्रचारक लोगों को सुने, ज़्यादातर जो प्रचारक लोग होते हैं, and majority are preaching a false gospel. ज़्यादातर जो लोग हैं उन लोग गलत शुभ समाचार को उन लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। Or I'm not trying to be proud here, I'm telling you the truth. मैं यहाँ पर अहंकारी नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई को बता रहा हूँ। Heaven is very small compared to hell. स्वर्ग जो है नर से तुलना में जो है काफी छोटा है। Hell is very small. Hell is enlarging herself daily. और जो नर्क है खुद को ज्यादा उसका बढ़ोतरी हो रहा है दिन ब दिन। People think gospel means I believe that Jesus died for me, was buried and rose again on the third day. लोगों को लगता है शुभ समाचार मतलब यीशु ने मेरे लिए मरा, खून बहाया और तीसरा दिन दफना कर तीसरा दिन वापस जी उठा। That's not the gospel. वो शुभ समाचार नहीं है। You need to bind your soul in the house of God आपको अपने प्राण को परमेश्वर के भवन में बांध के रखना है, to know the gospel, शुभ समाचार को जानने के to be लिए, saved, उद्धार पाने के and to लिए, serve प्रभु God, की सेवा करने के लिए, and grow in the house of प्रभु के God, वचन में बढ़ने के and लिए, die in the house of प्रभु के God, भवन में मरने के and that लिए, your children married in the house of ताकि आपके God. बच्चे कलीसिया में शादी करें। That should be our life. वो हमारा जीवन होना चाहिए। So what is the gospel? तो शुभ समाचार क्या है? Gospel is this. शुभ समाचार यही है। Gospel is not just Christ died and was buried and rose again. शुभ समाचार इतना ही नहीं कि यीशु मसीह मरा, दफनाया गया और तीसरा दिन जी उठा। That is just a part of the gospel. वो शुभ समाचार का एक छोटा सा हिस्सा है। Today you sing, pray a prayer and you're saved. और आप आज लोग कहते हैं प्रार्थना करो तुम उद्धार पा जाओगे। You don't get saved by praying a prayer. और केवल प्रार्थना करने के द्वारा तुम उद्धार नहीं पाते। You don't get saved by believing in death, burial and resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मृत्यु और दफन के ऊपर विश्वास करने से उद्धार नहीं होता, Because everybody believes in that. क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं इसके A ऊपर। Jehovah's Witness believes in जेहोवा that. विटनेसेस लोग भी इसके ऊपर विश्वास But he's करते still हैं, going to hell. लेकिन फिर भी उन लोग नर्क जा रहे हैं। Every religion believes in that. I mean, every denominations believes in हर जो that. डिनोमिनेशन है उन लोग इसके ऊपर, इस सच्चाई के ऊपर विश्वास The करते हैं। Mormons believes in that. मॉर्मन्स भी इसके ऊपर The विश्वास करते हैं। Catholics believes in that. कैथोलिक भी इसके ऊपर विश्वास Seventh करते Day हैं। believes in सेवन that. डे से भी बिलीव करते हैं। And you can ask some people from other religion, they may also believe in that. शायद बाकी धर्मों से भी आप पूछ लें, उन लोग भी शायद इसके ऊपर विश्वास कर लें। But simply believing in death, burial and resurrection does not save anybody. केवल यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और उनके दफन के ऊपर विश्वास करने से The किसी का उद्धार नहीं होता। the Jehovah's Witnesses believe in death, burial and resurrection, जेहोवा विटनेसेस लोग भी इसके ऊपर विश्वास करते हैं, but they reject that Jesus Christ is God. लेकिन लोग ये इनकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। The Mormons believe in death, burial and resurrection, मॉर्मन्स भी जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मृत्यु के ऊपर विश्वास करते हैं, but they reject that Jesus Christ is God. लेकिन ये इनकार कर देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर The है। Catholics believes in death, burial and resurrection, कैथोलिक के लोग भी इस सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं, but they add many more things and say that even through Mary you can go to heaven और and उन लोग get बहुत सी saved. चीजों को इनकार करते हुए कहते हैं कि मरियम के द्वारा भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। And so every denomination and many preachers preach part of the gospel and give a false gospel. तो ऐसे संस्थाओं में के जो लोग हैं उन लोग जो है सुसमाचार को जो प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ हिस्साओं को बस प्रचार करते हैं। In the gospel, the most important truth is this: गॉस्पेल में सबसे अहम हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा यही है Jesus Christ is God. कि यीशु मसीह परमेश्वर है। You can believe everything under the sun about Jesus, आप यीशु मसीह के बारे में सब कुछ विश्वास कर लें, but if you don't believe that Jesus Christ is God, अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, you cannot be saved. आप उद्धार नहीं पा सकते। It is not a message to believe after many years ये ऐसा संदेश नहीं about कि Jesus is God. क्या आप बहुत सालों के बाद विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Some people say, well, I believe in death, burial and resurrection. मैं यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और उनके दफन के ऊपर विश्वास करता हूँ। Then I got baptized. उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया। And then after many years, when I was listening to one preacher and reading one book, then I came to know that Jesus is God. कुछ साल बाद मैंने एक प्रचारक को सुना और मैंने बाद में जाना कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। I used to think that Jesus is the Son of God. मुझे लगता था कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर का संतान I है। didn't know that Jesus is God. मुझे नहीं मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर है। You cannot be saved. आप उद्धार नहीं पा सकते। To be saved, उद्धार पाने के लिए the most important doctrine सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा is to believe ये विश्वास करना that Jesus Christ is God. कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Everybody okay? सब लोग सही हैं? If no one preaches that message, अगर कोई भी ये प्रचार नहीं करता, and if a preacher is preaching only death, burial and अगर resurrection, प्रचारक केवल यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को प्रचार करते हैं, it's a false gospel. वो गलत शुभ समाचार है। The truth is this: सच्चाई यही है,
you are a sinner कि आप एक पापी है and you will die and go to hell. और आप मर कर नर्क जाएंगे, But you don't have to go to hell लेकिन आपको नर्क में जाने की जरूरत नहीं, because our God is a loving God. कि हमारा परमेश्वर प्यारा And परमेश्वर He है doesn't want anyone to go to hell. और वो नहीं चाहता कि कोई भी नर्क में जाए, He actually wants everyone to be saved. वो चाहता था कि सब मनुष्य उद्धार पाए। And you know what God did to make you saved? जानते हैं आपका उद्धार के लिए यीशु ने क्या किया? Jesus, who is God, यीशु जो परमेश्वर है He became man वो मनुष्य बना and He came into this world. और वो इस संसार में आया। Jesus, who is God, यीशु जो परमेश्वर है He became man वो मनुष्य बना and He came into this world. और इस संसार में आया And He took yours and my sins and the sins of the whole world upon Him. और आपके मेरे और पूरे संसार के पापों को खुद के ऊपर ले लिया And He died on the cross for yours and for my sin by shedding His blood. और वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना लहू को बहाते हुए वो मर गया He shed His blood so that your sins can be और forgiven. अपना लहू बहाया ताकि आपके और मेरे हम सब के पाप क्षमा हो सके। He died on the cross so you and I can have life. वो क्रूस पर मरा ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके And He rose again victoriously on the third day और पूरे विजेता के साथ वो तीसरा दिन जी उठा so that you and I can have hope. ताकि हमारे पास एक आशा हो सके। That is the gospel. वो एक सुसमाचार है। And if you have not believed anything else like this, अगर आपने इसके अलावा ऐसा कुछ विश्वास नहीं किया है you got to get saved. तो आपको उद्धार पाने की आवश्यकता है And then you got to get baptized. और आपको बपतिस्मा लेना है। You can be baptized 100 times without the gospel. आप बिना सुसमाचार के 100 बार भी बपतिस्मा ले लें। That is simply like getting wet. ये बस ऐसा है कि आप भीग गए हैं। You need to get saved. आपको उद्धार पाना है। Your soul should be binded. Your soul should be binded in the house of God. आपका जो प्राण है कलीसिया में बंधे रहना होगा। Then when we get saved, उसके बाद जब हम उद्धार पाएंगे we become the child of God. हम प्रभु के संतान बन जाएंगे, We become God's servants. हम प्रभु के सेवक बन जाएंगे। The world now looks at us. अभी संसार हमारे ओर देखेंगे। You know how the world looks at me and my family? जानते हैं संसार के लोग मेरे और मेरे परिवार के प्रति कैसे देखते हैं? They look at us like a fish in an aquarium. और उन लोग ऐसे देखते हैं जो मछली है एक्वेरियम में जो नीचे अंदर उसको रखा हुआ है। Isn't everybody else look at us like that? और सब लोग हमें ऐसा देखते हैं। Everybody. सब लोग। Every pastor's family is watched like a fish in the aquarium. हर एक जो पास्टर के जो परिवार है वो जो मछली के जैसा उसको देखा जाता है जो एक्वेरियम में रखा हुआ आता है। That's a good thing. वो अच्छी बात है। That's a good thing. अच्छी बात है Because it makes the pastor and his family into accountability. क्योंकि वो पास्टर और उनके जो फैमिली परिवार है उसका एक जिम्मेदार बन जाता है। How is she dressing up? देखो वो कैसे पहन रही है। Look at these children, man. They are not behaving good. उन लोग के बच्चों को देखो, उन लोग सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। Look what he is wearing. और देखो वो क्या पहन रहा है। I don't like the way he talks. जैसे वो बात करता है मुझे पसंद नहीं। People look at and judge the pastor's family like that. और लोग देखते हैं और उन लोग के व्यवहार को देखकर न्याय करते हैं। And we have to learn to behave. और इसलिए हमें व्यवहार करने के लिए सीखना है। That is a side. और वो अलग बात है। Now you अभी आप जो है You know how the world looks at you? जानते हैं संसार आपको कैसे देखते हैं? The world looks at you like a fish in an aquarium. और ऐसा मछली जो एक्वेरियम में रखा गया है। It's like you wearing a white shirt and having a black dot. Nobody will appreciate your white shirt. They're going to say there is a dot on your white shirt. ऐसा है कि आप एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और आपके उस रंग में जो है एक काला धब्बा है और कोई भी आपको अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन उस धब्बे के बारे में बात करेंगे। Your shirt can be 10,000 rupees. शायद आपका जो शर्ट है 10,000 के हो सकते हैं। Doesn't matter if there is a black dot on it. अगर वहाँ पे एक डॉट है, दाग है, तो कोई Everybody will look at that dot. तो लोग सभी के सभी लोग क्या करेंगे? उसी दाग में लोग देखेंगे। Our life becomes a dot to the world. और हमारा जो जीवन है वो एक दाग के जैसा बन जाएंगे संसार They में। know the shirt is looking good. उन लोग जानते हैं कि जो शर्ट है वो अच्छा दिख रहा The है dress is looking और good. जो ड्रेस है वो अच्छे दिख रहे हैं, But they will talk the dot. लेकिन जो दाग है उसको लेकर बात करेंगे। That's how the world looks at you. और वैसे ही संसार आपको देखेंगे। And you know what? That's a good thing.
वो आप जानते हैं वो अच्छी बात है हमारे लिए, It makes you and me accountable और वो हमें जो है अकाउंटेबल बना देते हैं so that we can live a life to please God. ताकि हम ऐसा जीवन को जिए जो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। Which means after you get saved, इसका मतलब उद्धार पाने के बाद you are the child of आप God. प्रभु के संतान हैं। Now, once upon a time, you were running after the devil to commit sin. एक ऐसा समय था जहाँ पे आप शैतान के पीछे भाग रहे थे पाप करने के लिए। Now, the devil is running after you. It's saying, come, 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 commit sin. अभी शैतान आपके पीछे भाग रहे हैं और आपको उकसा रहे कि आओ आओ तुम पाप करो। Once upon a time, you were knocking the door for committing sin. और एक ऐसा समय था जहाँ पे आप द्वार को खटखट रहे थे पाप करने के लिए। Now, after the getting saved, the door is open for you to commit sin. अभी उद्धार पाने के बाद द्वार हमेशा आपके लिए खुला रहता है पाप करने के लिए, And the world is watching us. और संसार हमें देख रहा है। Now, we are not perfect. हम कोई भी सिद्ध नहीं है, We are all sinners who are saved by the grace of हम God. सब पापी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए। Everybody agree with me? सब लोग मेरे साथ राजी हैं? Anybody holy, holy, holy? क्या यहाँ पे कोई बहुत पवित्र 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 है? Then this church is not a place for you. तो ये कलीसिया आपके लिए ऐसा जगह नहीं है, Because only God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Everybody okay? सब लोग सही हैं? Now we ought to live a life that pleases God. हमें ऐसा जीवन जीना उचित है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। Now that we are saved, अभी जैसे हम उद्धार पा चुके हैं, now the Spirit of God dwells in us. पवित्र आत्मा हमें अभी बसता है। Now that we have the white shirt on us, जैसे अभी हम हमारे ऊपर सफेद रंग के कपड़े हैं, there will be time when dots will come on us. ऐसा समय आएंगे जब हमारे उस कपड़े में दाग आने लगेंगे। You may fall, but you आप get up आप शायद गिरेंगे जीवन में, लेकिन आपको उठना है and you glorify God, confess your sins, bind yourself in the house of और God. पापों का प्रायश्चित करें। आप उठें, प्रभु के साथ सही रहें और विश्वास में आप बंधे रहें, You continue to walk your Christian path. और मसीही की रास्ते में आप लगातार चलते रहें। You might fall शायद again, वापस आप गिर सकते हैं, but get up, लेकिन हम उठें, confess your sins, पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, get right with God, प्रभु के साथ सही रहें keep going. और लगातार आप चलते जाएं। And you may read your Bible well, और आप सही से बाइबल पढ़ सकते हैं, you may pray well, शायद आप अच्छे से प्रार्थना कर you सकते may हैं, come to church, शायद कलीसिया आते हैं, everything is fine, सब कुछ सही है जीवन में, and then you fall. उसके बाद गिर जाते हैं You get up, और आप उठ जाते हैं। you confess your sins, पापों का प्रायश्चित करें you get right with और God. प्रभु के साथ सही रहें। Now, as a Christian, we are not supposed to live like the world. और एक मसीह होने के नाते हमें संसार के जैसा नहीं जीना चाहिए। We are not supposed to be drinking alcohol and smoking and doing drugs. हमें मद्यपान और धूम्रपान या फिर ड्रग्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। We're not supposed to be beating our wives and cursing our husbands. हमारे पत्नियों को मारना नहीं और पतियों को श्राप नहीं देना। As a Christian, you're not supposed to be fornicating and committing adultery. और एक मसीह होने के नाते आपको व्यभिचार नहीं करना, शादी होने के बावजूद किसी और से संबंध रखना, Those are sins. वो सब पाप है। And sometime you may fall. शायद कभी कभार आप गिरेंगे जीवन में, But that's not something that you need to continue on. लेकिन ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप लगातार चलते रहें, God will judge us. नहीं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। We need to repent immediately हमें तुरंत ही क्या करना है? पश्चाताप करना है and say, Lord, I'm sorry. और कहें प्रभु मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे माफ़ करें। Which means if you are a young boy and a girl, अगर आप जवान लड़का लड़की हैं, you need to wait until you're married. जब तक आप शादी ना करें आपको अपेक्षा करना है, And after you marry, और शादी होने के बाद you make love with your own person. आप खुद के व्यक्ति के साथ प्यार कर सकते हैं। If you're not married, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, you should not be committing adultery. आपको व्यभिचार नहीं करना है, You should not be fornicating. आपको व्यभिचार नहीं करने से, Because doing that can bring a big, big judgment on you. नहीं तो उसके द्वारा क्या होगा? आपके जीवन में बहुत बड़ा एक न्याय आ जाएंगे आपके जीवन में। Now, God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है, God loves you more than anybody can love you. और कोई आपसे इतना प्यार करने के ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्यार कर सकता है। And God, because He loves you, He will tell you the truth. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आपको सच्चाई को बताएंगे, Not because He hates you. ऐसा नहीं कि आपको नफरत करता है। So Christians should not be found in a bar drinking alcohol तो मसीहों को ऐसी जगह में नहीं पाना चाहिए जहाँ पे लोग दारू पीते हैं, or in a room doing drugs या फिर ऐसे जगह में कमरे में जहाँ पे लोग ड्रग्स करते हैं, or like a worldly man beating his wife जैसे संसारिक के लोग अपने पत्नियों को मारते हैं, or like a worldly woman cursing her जो husband संसारिक जो स्त्री जो अपने पति को श्राप दे रही होती है, or like a worldly children rebellious to the या parents. फिर ऐसे संसारिक बच्चे जो
माँ बाप के खिलाफ हमेशा जाते हैं। Or like a worldly people living in adultery and fornication. ऐसे लोग जो हमेशा व्यभिचार करते हैं, गलत जीवन को जीते हैं। We are God's children. हम परमेश्वर के संतान हैं, We are God's servants. परमेश्वर के सेवक हैं। We might have a story. हमारे पास शायद बहुत सी कहानियां होंगी जीवन में। You might have fallen. आपने शायद बहुत से समय गिरा, I might have fallen. मैंने भी शायद काफी समय गिरा, Everybody might have fallen सब लोग शायद गिरा होगा। in some way or the other. और ऐसे कौन से ना कौन से रहा था, Not necessarily your sin. ऐसा नहीं कि जो आप देखा रहे होंगे या फिर पाप करे होंगे। By the way, is drinking alcohol sin? क्या दारू पीना पाप है? Drinking is sin? How about eating? खाना क्या है? अरे तो बेबदो मरे कोण सांगिना तो लेवंटो म्हणून No? Everybody Christian we are Christian, maybe should not be in the bar, should not be drinking, but bam. That is also big sin. जो Somehow Christian thinks drinking alcohol is sin, but gluttony is okay. मसीह को लगता है कि पीना जो है वो पाप है, लेकिन ज्यादा हद से ज्यादा खाना वो पाप नहीं है। It's the same sin. वही पाप है। Just because I don't commit your sin, that does not mean I'm better than you. ऐसा नहीं कि आपका पाप नहीं करता हूं इसका मतलब मैं आपसे बेहतर हूं। Just because you don't commit the way I do, it does not mean you are better than me. जैसे मैं पाप करता हूं उस तरह से आप पाप नहीं करते रहेंगे, इसका मतलब नहीं कि आप बेहतर हैं। Everybody okay now? सब लोग सही हैं अभी? तो बेब दो, हाँ तो बेब दो, तो खाओ रहा मेरे. Nobody talks. Because we live inside an aquarium and the world is watching us. क्योंकि हम ऐसे जगह में हम रह रहे जहाँ पे संसार हमें देख रहा होता है। And so we need to behave in the house of तो God. हमें प्रभु की भवन में सही से व्यवहार करना है। And how we need to behave. और हमें कैसे व्यवहार करना है? Ye who are spiritual, let them do what? Restore such a one with a spirit of meekness. आप में से जो आत्मिक है, ताकि आप ऐसे लोगों को उन लोगों को ठीक करें जो आत्मा में गिरे हुए हैं। Lest you also fall and be caught in that sin. नहीं तो तुम भी गिरोगे और तुम पाप में पकड़े जाओगे। And so we need to behave in the house of प्रभु God. की भवन में सही से बर्ताव करना है। We need to bind ourselves in the house of प्रभु के God. भवन में हमें खुद को बांध के रखना है And we need to build our soul in the house of और God. हमारे आत्माओं को, हमारे प्राण को हमें परमेश्वर के भवन में बांधे रहना है। We need to grow. हमें आगे बढ़ना है So we need to have accountability. ताकि हमारा अकाउंटेबिलिटी हो सके। Now you say I'm a young person, my temptation is too much. मैं जवान व्यक्ति हूँ, मेरा बहुत सारे परीक्षाएं हैं जीवन में। What kind of temptation, by the way? किस प्रकार का परीक्षा आपके जीवन में है? Sex is your temptation? क्या यौन तुम्हारा परीक्षा है? Then why don't you get married? तो तुम क्यों शादी नहीं कर लेते? The Bible says it is better to marry than to burn with passion. और लिखा है कि ऐसी परीक्षाओं में गिरने से तुम क्या कर लो, शादी कर लो। Get married and live a holy life. शादी करो और तुम पवित्र जीवन को जी सकते हो। Why you want to drink alcohol? क्यों तुम दारू ऐसा पी जाते हो? That's destroying the temple of God. परमेश्वर का भवन को वो नष्ट कर रहा है। Why you want to do drugs? क्यों तुम ड्रग्स करते हो? Why you want to smoke? क्यों तुम धूम्रपान करते हो? Let's go destroying the house of वो God. परमेश्वर का भवन को नष्ट करना होता है। Why you want to beat your wife? कि तुम अपने पत्नी को मारना चाहते हो? Curse your husband? अपने पति को श्राप I'm देते not हो? saying you're doing it. I'm just generalizing मैं everything. नहीं कह रहा हूँ कि आप कर रहे हो, लेकिन बस ऐसे जनरली मैं बात कर रहा हूँ। We're not supposed to do that. हमें वैसा नहीं करना है। We need to build our soul. We need to build our soul in the house of God. हमें हमारे प्राणों को हमें परमेश्वर के भवन में हमें बांधना है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है। Our God will forgive all sins. हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है। Today you may be convicted of some sins. शायद कुछ पापों को लेकर शायद आपको आज मन ही मन में आपको पता चला शायद It's से। not something that you take home without responding to the message. ऐसा नहीं कि आप बिना रिस्पॉन्ड करे आप घर को चले जाएं। There may be something the Lord has spoken to you. शायद ऐसा चीजें होंगे जो परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। There may be something that you're struggling with sin. शायद आप पाप को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं And you need God to help you. और आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। And the problem with us is we don't want to publicly show people that we have problem. समस्या ये है कि हम खुलेआम लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते कि हमारे पास समस्या है। But Christ hanged on the cross naked, लेकिन यीशु ने बिना कोई कपड़े वो हमारे लिए क्रूस पे लटका गया publicly.
लोगों के सामने, for you और आपके लिए and for me. और मेरे लिए। And God gave you a house. परमेश्वर ने हमें भवन को दिया, That's called the church. उसको हम कलीसिया कहते हैं। Not of a dead God, जो परमेश्वर मरा हुआ ऐसा नहीं, not of idol, मूर्तियों का नहीं, but the living God. लेकिन जीवित परमेश्वर, He resides within you. वो आपके अंदर जीता है, He is among us right now. अभी फिलहाल हमारे बीच में मौजूद है। And God says, I want to bless you. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीष करना चाहता हूँ, I want to help you. मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। You are fallen. तुम गिरे हुए हो, I want to lift you up. मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ, And I want to walk with you. और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता I हूँ। don't want you to think you're alone. मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ऐसा सोचे कि I तुम will अकेले हो। walk, I will walk with you. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, You are my child. तुम मेरे संतान हो, You are my servant. तुम मेरा सेवक हो। I know you have struggled, मुझे मालूम है तुम्हारे पास संघर्ष है, but you come to me लेकिन तुम मेरे पास आओ and I will help you. और मैं तुम्हें मदद करूंगा। And my dear friends, when God's children cry out unto God, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं, God will wipe away your tears. परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, He'll answer your prayer. आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, He will give you strength तुम्हें सामर्थ को देगा and help you to overcome और तुम्हें अतिक्रम करने के लिए मदद करेगा your temptation. तुम्हारा जो परीक्षाएं हैं, And He will build you in the house of God. और तुम्हें परमेश्वर अपने भवन में बांध देगा। So learn to behave in the house of तो God. प्रभु की भवन में कैसे बर्ताव करना है वो आप सीखें। Bind yourself in the house of God. खुद को परमेश्वर की भवन में आप बांधे रखें। Don't remove your anger in God's house. आप आपके क्रोध को परमेश्वर की भवन में ना लाएं। If you won't do it in the school, अगर आप स्कूल में ऐसा नहीं करेंगे, if you won't do it in the job, अगर आप काम के जगह में ऐसा नहीं करेंगे, church is not a place that you throw your anger upon. तो कलीसिया ऐसा जगह नहीं जहां पर आप अपने क्रोध को डालें। And so we need to bind ourselves in the house of हमें God. प्रभु के भवन में अपने आप को बांध के रखना है Then grow, build yourself, your soul in the house और of अपना God. आत्मा को आप स्थापना करें परमेश्वर के भवन में। Let's close our eyes and pray. आइए हम हमारे आंखों को बंद करके इस समय प्रार्थना करें। Now, some of you may be thinking, this message is for them. हमें से बहुत से लोग ये संदेश मेरे लिए ऐसा नहीं है, This is for them. ये उन लोग के लिए है, This is for him. ये उनके लिए है, This is for her. ये उनके लिए है, This is for that man. और वो उस व्यक्ति के लिए, And this is for that woman. और वो उस स्त्री के लिए है। And many times we are so good in playing the game of blaming it on others. और इससे समय हम अच्छे बनने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर ये संदेश को डालते हैं। When we come to the house of the living God, जब हम जीवित परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, and the ground and pillar of truth, जो सच्चाई की जो खंभा और नींव है, God is not speaking to your neighbor, He is speaking to you. परमेश्वर आपके पड़ोसी से नहीं लेकिन आपसे बात कर रहा है। There may be something that you are struggling with. शायद आप ऐसे कुछ विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं इस समय There may जीवन be में। places that you fell. शायद ऐसी जगहों में जहाँ पर आप गिर गए हैं, And today God spoke to you. परमेश्वर ने आज आपसे बात किया। Maybe your addictions. तुम्हारा जो एडिक्शन है, Or maybe you're living life like the world. ऐसे जीवन को आप जी रहे जो संसार के लोग जीते हैं, And today God might have spoken to you. शायद परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है। Or there is something you just want, a heavy burden laid in your heart. शायद से बोझ आपके जीवन में है इस समय, And you want to lighten that burden before the Lord. और आप प्रभु के सम्मुख आकर उस बोझ को रखना चाहते हैं। Be honest. आप ईमानदार होइए। I can just close this prayer right now and go. अभी मैं प्रार्थना को समाप्त करके जा भी सकता हूँ, But I'll give you an opportunity लेकिन मैं आपको एक अवसर को दूंगा to come to God, प्रभु के सम्मुख आने के लिए, fall at the feet of Christ, परमेश्वर की पाँव के तले गिरकर, and you ask God to help you. और आप प्रभु से मदद के लिए Ask पुकारें, God to give you the power to overcome temptations. ताकि परमेश्वर आपके जो परीक्षाएं हैं उसका आप अतिक्रम कर पाएं। If the Lord has spoken to you, अगर प्रभु ने आपसे बात किया हो, I don't want you to waste your time. मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपने समय को बर्बाद करें। I want you to get up, मैं चाहूँगा कि आप उठें make a public prayer to God. और खुलेआम आप आकर प्रार्थना करें Say, परमेश्वर God, से, help me, Lord. और कहें प्रभु से, प्रभु मुझे मदद करें। I have weaknesses. मेरे पास बहुत सारी कमजोरियां हैं मेरे जीवन में, I need help. मुझे मदद की आवश्यकता है। I don't want to be proud. मैं घमंडी नहीं बनना चाहूँगा, I want help, oh God. मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। My sin is gluttony. मेरा पाप जो ग्लटनी है पिता, My sin is gossiping. मेरा जो पाप वो चुगलियाँ करना, My sin is
adultery. मेरा जो पाप है विचार करना, My sin is misbehavior. और गलत व्यवहार करना, My sin is lying. मेरा जो पाप झूठ बोलना। I don't want to decorate life in this manner. मैं मेरे जीवन को ऐसा नहीं सजाना चाहूँगा। I want you to get right with God मैं चाहूँ कि मैं परमेश्वर के साथ सही रहूँ, and live for the glory of प्रभु God. की महिमा के लिए जी सकूँ। The Lord is speaking to you, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, and in your heart you're struggling to get up. आप अपने हृदय में उठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। If the Lord has spoken, you come and pray right now. अगर प्रभु ने आपसे बात किया हो, इस समय आप आगे आए और प्रभु से Humble प्रार्थना करें, yourself and ask God to help you खुद right को now. नम्र करें और प्रभु से आप मदद मांगे इस समय। You and praise you for this wonderful day.
पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। Thank you for speaking to our lives हमारे today. जीवन में बात करने के लिए धन्यवाद देते हैं। Help us to behave in the house of God, प्रभु की भवन में सही व्यवहार करने के लिए मदद करिए। to be binded in the house of प्रभु की God, भवन में ताकि हम बंधे रहें and to build in the house of और God. हमारे जीवन का स्थापना कर सके प्रभु के भवन में। Bless your children. कि बच्चों को आशीष करें Help them to take this message और इस संदेश को लेने के लिए सहायता करें, in the purity of heart, ताकि उन लोग मन की शुद्धता से ले सकें, to glorify God, आपकी महिमा करने के लिए, to apply in their hearts, उन लोगों के जीवन में इसका लागू करने के लिए, and bring glory and honor to thy name. आपकी महिमा नाम के लिए लाने सके। पिता We परमेश्वर, give you all the glory and honor. हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' mighty name यीशु we मसीह के pray. सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, आमीन। Amen and again. Amen.